Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on a portfolio hedging with futures. So let us see data given in this scenario. So we are given on 1st August of current financial year. An investor has a portfolio consisting of 5 securities. Securities are A, B, C, D, E. Market price is given, number of shares are given, and beta of each security is given. And it is given cost of capital for the investor is 20% per annum compounded, and the current Nifty value is 19,500, and Nifty futures are available with expiry for 3 months, that is October, and 4 months, that is November, and are currently quoted at rupees 19,700 and 19,900 respectively. So each Nifty futures can be traded in units of 50 only. तो ये लोट्स है ये आपका निफ्टी का, जिसे ये 50. फिर आपके पास डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, लाइक नंबर 1, कैलकुलेट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, कैलकुलेट थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरिंग इन अक्टूबर एंड नवंबर. तो फ्यूचर का प्राइस भी कैलकुलेट करना है, और उसके लिए ई की वैल्यू आपको मेंशन की है 0.05, ई रेज़ टू पावर 0.06 एंड 0.07. Then number 3, they are asking calculate the number of contracts of the Nifty the investor needs to trade, buy or sell to get a full hedge until November for his portfolio. फिर आपने फुल हैजिंग करनी है पोर्टफोलियो की बाय द मंथ ऑफ नवंबर, और उसके लिए आपको कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स. 4th, they are asking calculate the number of future contracts the investor should trade if it desires to reduce beta of his portfolio to 0.25. Similarly, MCQ number 5th है calculate the number of future contracts the investor should trade, buy or sell if it desires to hedge 150% of portfolio until November. तो स्टार्ट करके नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो बीटा, विच इज वेटेड बीटा ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो. तो MCQ number 1, we have to calculate portfolio बीटा. तो बेसिक फार्मूला है जो हम शो करते हैं बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके वेट से एंड इससे समेशन. तो इसका एक टेबल ड्रॉ करते हैं. तो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ आपको मेंशन की हैं जो इन्वेस्टर ने मनी इन्वेस्ट की है. सिक्योरिटीज आपकी ए बी सी डी ई सिक्योरिटी गिवन, तो ए बी सी डी एंड ई. तो हर सिक्योरिटीज के आपको मेंशन किए हैं नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट प्राइस. तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हर सिक्योरिटी में इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MPS रख लेते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर. तो अमाउंट्स आपके आ जाएंगे रुपीज़ में. तो लेके सी फॉर अवर सिक्योरिटी ए नंबर है आपके 450, प्राइस है 60, 450 इंटू 60. देन फॉर सिक्योरिटी बी नंबर हैं आपके 150, प्राइस है 320, तो 150 इंटू 320. देन नंबर इज अवर 200, 500, 600 एंड मार्केट प्राइस इज आर गिवन, दिस इज 640, 130 एंड 480. तो लेके सी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ई सिक्योरिटी. तो फर्स्ट वन इज 450 इंटू 60, दिस इज 27,000. तो बी इज 850 इंटू 320, तो 272,000. तो सी इज 200 इंटू 640, तो 128,000. तो 500 इंटू 130, 65,000. then 600 into 480, 288,000. So now let us see what is the total investment in our portfolio. तो किसी 27,000 प्लस 272,000 प्लस 128,000 प्लस 65,000 प्लस 288, तो किसी 7,80,000 is value of portfolio. And now we can determine what is the beta of portfolio. So let us see beta of each security. So this is given to us 0.87, so 1.31, then it is 0.94, and this is 0.66 and 1.258. So now you multiply beta with its weight, beta of portfolio. तो बीटा ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी 0.87, तो इसका जो वेट बन जाएगा इन्वेस्टमेंट 27 है, टोटल इन्वेस्टमेंट है आपकी 780. देन सेकंड बीटा 1.31, इट्स वेट इज 272 अपॉन 780.
प्लस 0.94 एंड एक्स ब्रैकेट 128 अपॉन 780 प्लस 0.66 इंटू ब्रैकेट 65 अपॉन 780 सो प्लस 1.5 इंटू 288 अपॉन 780 तो 780 आप एलसीएम ले सकते हैं, न्यूमेरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन डिवाइड बाय 780. So this beta portfolio is coming 1.25. This is portfolio beta. Now you can see which option is correct. Answer is option number C. So next we have MCQ number second. In this case, they are asking calculate the theoretical value of futures contract for contracts expiring in October and November. और इसमें ई की वैल्यूज आपको मेंशन की हैं, ई रेज टू पावर 0.05, 0.06 एंड 0.07. तो इसमें देखो पहले आपको ये मेंशन किया था कि आपका जो पोर्टफोलियो है जिसे ऑन 1 अगस्त पोर्टफोलियो की देखो वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है 7,80,000 और इसका बीटा हमने कैलकुलेट किया है पोर्टफोलियो 1.25. अब आपने फ्यूचर्स में एंटर किया है. अब दो फ्यूचर्स हैं, एक आपके पास है फॉर 3 मंथ्स जैसे कि अक्टूबर और एक है 4 मंथ्स नवंबर. इसमें आप देखेंगे टाइम है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जैसे कि 3 मंथ फ्यूचर्स है एंड दिस नवंबर फ्यूचर्स हैं आपके 4 मंथ फ्यूचर्स. नाउ वी आर आस्किंग व्हाट इज थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स एक्सपायरिंग इन अक्टूबर एंड नवंबर. तो इट मीन्स अब आपको फ्यूचर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. टाइम पीरियड है अक्टूबर के लिए बन जाएगा आपका 3 मंथ्स. तो इसका फार्मूला है स्पोक. देखो कितनी वैल्यू है फ्यूचर की. स्पोक निफ्टी आपको मेंशन किया ही है 19,500 है. सपोर्ट वैल्यू है गिवन, इनटू कर दीजिए ई रेज टू पावर आर इंटू पी और आर हमें मेंशन किया है जिसे 20% पर एनम विच इज कंपाउंडेड. तो इट मीन्स जब ई की वैल्यू दी है तो कंपाउंडिंग आपकी डेली बेसिस पर हो रही है. तो सपोर्ट वैल्यू देखो आपको मेंशन की है तो जिसे जो गिवन 19,500 करंट निफ्टी इनको करके ई रेज टू पावर आर है आपका 0.20 और टाइम पीरियड है 3 मंथ्स 3/12. So this value is coming 19,500 e raised to power this is 1/4 0.05. 0.05 की वैल्यू हमें ऑलरेडी मेंशन की है क्वेश्चन में. सो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर विल बिकम, तो वो ई रेज टू पावर 0.05 है 1.05 यानी कि 127. So this will be the theoretical value of futures after 3 months 19,500 into 1.05 तो जिसमें कमिंग 20,499.76 है. तो राउंड ऑफ कर रहे हैं 20,500. ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स आफ्टर 4 मंथ. तो टाइम पीरियड है इसमें 4 मंथ्स. इट मीन जिसे 4 नवंबर फ्यूचर्स. फार्मूला सेम है तो आपका फार्मूला बन जाएगा 19,500 सपोर्ट वैल्यू है इनटू ई रेज टू पावर आर है आपका 20%. नाउ टाइम पीरियड इज 4/12. तो जिसे जो 19,500 इंटू ई रेज टू पावर जिसे 0.20 डिवाइडेड बाई 3 0.0667. अब आपको देखिए वैल्यूज मेंशन की हैं. ई रेज टू पावर 0.06 की है, 0.07 की है. तो इट मीन्स अब आपको इंटरप्लेट करना पड़ेगा. तो लेके से वैल्यू ऑफ ई रेज टू पावर 0.06 एंड ई रेज टू पावर 0.07. तो 0.06 की एक वैल्यू आपको मेंशन किया है 1.06184 एंड फॉर 0.07 1.07251. तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो 0.0667. तो इट मीन्स तो ये डिफरेंस आ रहा है आपका 0.7 और 0.6 के बीच में. तो लेके से इफ डिफरेंस इज हाउ मच, तो आपको देखो यहाँ डिफरेंस है 0.01 यानी वट इज डिफरेंस इन दिस वैल्यू. तो 1.07251 माइनस 1.06184. तो ये डिफरेंस आ रहा है आपका 0.01067. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 6 से आपने 7 में जाना है तो हमें कितना डिफरेंस चाहिए 0.0067. उसके लिए कितनी वैल्यू होगी. अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ई रेज टू पावर 0.0667. तो 0.06 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है और इसमें प्लस करना है आपने. अब कितना डिफरेंस है आपका
जो है 6-7 का, तो उसके लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए? यू कैन राइट इफ डिफरेंस इज 0.01 देन हाउ मच की वैल्यू 0.01067। और आपको जो डिफरेंस रिकवर करना है 6 से लेके 7 के बीच में वो है 0067। तो 0.0067 के लिए आपकी कितनी वैल्यू होगी? तो दिस विल बी टोटल वैल्यू 1.06184 और प्लस करके हम इसमें 0.01067 इंटू 0.067 डिवाइडेड बाय 0.01, जिसे कमिंग 0.0071489। इसको प्लस कीजिए आप, प्लस 1.06184। तो एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है अब आपकी 1.06899। Now we can calculate what is value of futures after 4 months. So what is value of future after 4 months? Which means November futures. सपोर्ट वैल्यू है 19500, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1.06899। So this value coming 20,845 round the field. So now you can see which option is correct. In this case, answer is option number A. So next let us see MCQ number 3. In this case, they are asking calculate the number of contracts of the Nifty the investor needs to trade, buy or sell to get to full hedge until November for his portfolio. अब अपने नवंबर तक अपने hedging करनी है. It means we have to make a full hedging of portfolio. So full hedge of portfolio, और ये आपको मेंशन किया है टिल नवंबर। इट मीन्स उसके लिए आपको चाहिए नवंबर के फ्यूचर का जो प्राइस है, तो वो जैसे आपको मेंशन किया ही है, जैसे 19,900 और उसका मल्टीप्लायर है 50 टाइम्स। तो जब आपने फुल हैजिंग करनी है तो उसका फार्मूला बन जाएगा वट इज नंबर ऑफ फ्यूचर्स जो आपको एंटर करने हैं फॉर फुल हैज, वट इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ये फुल हैज हो जाएगा डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर। फ्यूचर आपको लेने हैं नवंबर के जो फ्यूचर्स हैं। तो आप देखिए वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है आपके पास किसी के 7,80,000, पी का आपने कैलकुलेट किया है 1.25 और फ्यूचर की वैल्यू आपको मेंशन की है। नवंबर के फ्यूचर का ट्रेड है 19,900 और इसका मल्टीप्लायर है 50। दिस विल बी नंबर ऑफ फ्यूचर्स वी हैव टू एंटर। So like I say, how much is this? 780 into 1.25 divided by 19,900. So divided by 50. This is your 0.982 futures. So you can see which option is correct. So answer is your option number B is your correct. Next we have fourth MCQ. In this they are asking calculate the number of future contracts that investor should trade, buy or sell if he desires to reduce the beta of his portfolio to 0.25. तो आपने बीटा रिड्यूस करना है जिसे MCQ नंबर 4। तो आप देखिए सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि अपने फ्यूचर को बाय या सेल करना है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो में किसी का लॉन्ग पोजीशन, इट मीन्स वी हैव टू सेल फ्यूचर्स। तो ये आपका आंसर आ रहा है शॉर्ट फ्यूचर्स। तो फोर्थ में आपका फार्मूला बन जाएगा बता नंबर ऑफ फ्यूचर्स जो आपको एंटर करने हैं, देखिए वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो माइनस कर दीजिए डिजायर्ड बीटा जो आपको रिक्वायरमेंट है, डिजायर्ड बीटा डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर। फ्यूचर आपको वही लेना है नवंबर। तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 780, बीटा है आपका 1.25 और आपको चाहिए डिजायर्ड बीटा 0.25। सो डिवाइडेड बाय वैल्यू वन फ्यूचर 19,900 इंटू 50। So this will be number of future contracts we have to enter. So this is 780 divided by 19,900 divided by 50. Answer is 0.78. And you can see which option is correct. Answer is your option number C. So next we have MCQ number 5. In this they are asking calculate the number of future contracts the investor should trade, buy or sell if he desires to hedge 150% of portfolio until November। अब आपने 150% पोर्टफोलियो की hedging करनी है। तो किसी MCQ नंबर 5। तो what will be formula in this case? number of futures
और आंसर वही है आपका कि आपको सेल करनी है। तो नंबर ऑफ फ्यूचर्स है टू बी सोल्ड, तो आपका बन जाएगा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। अब कितने परसेंट हेजिंग करनी है आपने, 150% इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर विच इज फॉर 4 months अंटिल नवंबर। तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज 780 इंटू कर दीजिए 150%, बीटा इज 1.25, वैल्यू वन फ्यूचर इज 19,900 इंटू 50। So this will be number of features 780 into 150% into 1.25 divided by 19,900 divided by 50. So answer is coming 1.47 future contracts आपको एंटर करने हैं। And you can see which option is correct. Answer is option number 8. So in this lecture we discussed a case scenario based on portfolio hedging with futures. फर्दर टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन फर्दर लेक्चर्स। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।